Very good morning, students, and welcome to the e-learning session of Science and Technology. In today's lecture, we are going to study chapter number 6 of NCERT textbook, that is combustion of flame. So in the earlier standards, we have already gone through the chapters like heat and measurement. So you are familiar with the terms like heat, temperature, how to measure heat, various types of thermometers, etc. Now in this chapter, we are going to study about combustion. Okay, so the first question is that what is combustion? Combustion आखिर होता क्या है? So a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give heat is called combustion. Okay, तो combustion एक ऐसा chemical process है कि जिसमें एक substance, कोई भी substance जो oxygen के साथ react करके heat produce करता है, इस process को हम combustion कहते हैं. ओके तो कंबशन के बेसिस पे हम किसी भी सब्सटेंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड अनदर वन इज़ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. ओके तो हमारी सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई भी सब्सटेंस है वो बर्न हो रहा है तो हम उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, और अगर कोई भी सब्सटेंस है जो बर्न नहीं हो पा रहा है तो हम उसे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं. नाउ एग्जांपल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर एलपीजी, सीएनजी, petrol, diesel, etc. While example of non-combustible substance can be iron. Okay, आप सब जानते हो कि आयन बर्न नहीं होता, वो मेल्ट हो जाता है. Okay, so iron is an example of non-combustible substance. Okay, now these three things, fuel, oxygen and heat, form the pillar of combustion. Okay, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर प्रेजेंट ना हो, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीनों एसेंशियल चीज़ें हैं कंबशन के प्रोसेस के लिए. अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट ना हो तो कंबशन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, और इन तीनों में से किसी एक चीज़ के एब्सेंस में कंबशन कंटिन्यू नहीं करेगा. ओके, so if it is asked that what are the three essential things for combustion, then the answer is oxygen, fuel and heat. Okay, now what is ignition temperature? So the lowest temperature at which substance catches fire is called its ignition temperature. Okay, for example जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं किसी combustible substance को, for example suppose हम अभी assume करते हैं कि एक मेरे पास block है जो कि एक combustible substance है. अब मैं उसको हीट कर रही हूँ, ठीक है, मैं उसको 50 डिग्री हीट दे रही हूँ, 60 डिग्री हीट दे रही हूँ, 90 डिग्री हीट दे रही हूँ, वो बर्न नहीं हो रहा. 100 डिग्री पे भी वो जो ब्लॉक है वो बर्न नहीं हो रहा, लेकिन 101 डिग्री पे वो बर्न होना स्टार्ट होता है. ओके, तो वो जो 101 डिग्री है वो उस वुडन ब्लॉक का इग्निशन टेम्परेचर होगा, क्योंकि वहाँ से वो ब्लॉक जो है वो बर्न होना स्टार्ट हुआ है. ओके, सो इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनके इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होते हैं और जो बहुत इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. जैसे कि पेट्रोल, डीजल है या फिर एलपीजी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेती हैं. इसका मतलब क्या है कि उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है, काफ़ी लो टेम्परेचर पे वो फायर को कैच कर सकते हैं. Okay, so these type of substances are called inflammable substances. Okay, अब कुछ situations हैं. There are some situations that in this condition how you will control the fire. Okay, so we have already seen that the three things essential for combustion are oxygen, fuel. So we have already seen in the earlier slides that the three things essential for oxygen for combustion are oxygen, heat and fuel. So if any one of these three things get eliminated, then the fire can be controlled. Okay, so to control fire they are doing nothing but just they are eliminating one of these three things. इन तीनों में से किसी एक चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं जिसकी वजह से जो फायर है वो स्टॉप हो जाता है. Now suppose very small incident is it is there that if a sofa catches fire, okay, then what will you do? Okay, we will place a wet blanket on it so that oxygen gets eliminated and the fire can be stopped. Okay, now next is if there is a fire breakout at shop or any house, at that time fire brigades are essential.
Okay, fire brigades spray water at high pressure, and due to which heat gets eliminated and the fire gets stopped. Now if there is a fire at petrol pump, then what we can do? Okay, at that time we can't use waters, so at petrol pump we will use sand. Sand eliminates oxygen, and due to which the fire gets stopped. Now suppose an electrical equipment catches fire. At that time, if we will use water spray, then we will only catch electric shock. So we can't use water there. Hence, we use carbon dioxide. Carbon dioxide would eliminate oxygen and heat, and the fire can be stopped. If a forest catches fire, at that time water spray is used in very huge quantity. हेलीकॉप्टर के थ्रू वाटर स्प्रे किया जाता है, क्योंकि बहुत वाइड एरिया में आग लग गई होती है फॉरेस्ट फायर में. तो ऐसे में क्या होता है, हीट और फ्यूल एलिमिनेट हो जाता है एंड द फायर इज स्टॉप्ड. ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कंबशन. तो कंबशन जो है वो 3 टाइप के होते हैं: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोशन. वन बाय वन इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. तो रैपिड कंबशन है, रैपिड कंबशन इज टेकिंग प्लेस रैपिडली विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट. ओके, बहुत क्विकली जो है वो फायर को कैच कर लेता है. तो ऐसा जो कंबशन है उसको बोलते हैं रैपिड कंडक्शन, और उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. अब स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है कि उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है कंबशन करने के लिए. ओके, वो खुद ही बर्स्ट हो जाते हैं फ्लेम में. जैसे कि क्रैकर्स है, तो क्रैकर्स में आपको पेट्रोल नहीं डालना पड़ता है आग लगाने के लिए. ओके, उसको फ्लेम मिलते ही वो खुद ही कंबशन पकड़ लेते हैं. ओके. नेक्स्ट इज एक्सप्लोशन. तो एक्सप्लोशन इज अ रैपिड प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट एंड साउंड. जब एक्सप्लोशन होता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है. एक्सप्लोशन इज ऑल्सो अ रैपिड कंबशन, बट इट प्रोड्यूसेस साउंड ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस. फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स, फॉर एग्जाम्पल एनी एक्सप्लोसिव मटीरियल. सपोज सोडियम है, तो सोडियम को आप एयर में रख दो, इट विल एक्सप्लोड. ओके. Okay, so now we will see, we all know that when we light a candle, we see flame. So have you ever noticed the structure of flame? This flame can be divided into 3 zones. The first one is inner zone, the black colored area surrounded by the wick, and it is non-combustion zone. वहाँ पे कोई combustion नहीं हो रहा होता है. And then it is a middle zone. Middle zone जो हमें yellow color की पूरी flame दिखाई देती है, जो light produce कर रही है, वो जो येलो फ्लेम है उसको बोलते हैं मिडल जोन, और वहाँ पे जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट होता है. ओके. एंड द नेक्स्ट इज आउटर जोन. तो जो हमें वो जो ब्लैक पार्ट होता है, जो फ्लेम के नीचे हमें ब्लू कलर का पोर्शन नज़र आता है, जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती और वो ब्लू कलर की होती है, वहाँ पे जो है वो पूरा कंप्लीट कंबशन होता है, एंड दैट जोन इज कॉल्ड आउटर जोन. ओके. A flame is divided into 3 zones: inner zone, middle zone and outer zone. ओके. सो अब अगर हमें कोई आइडियल फ्यूल सिलेक्ट करना है तो हम अपने माइंड में कौन सी कंडीशंस रखेंगे सबसे पहले? तो जो फ्यूल है सबसे पहले तो रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, हम इजीली मिल जाना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें 10 किलोमीटर ट्रैवल करके वो फ्यूल लेने के लिए जाना पड़े. ओके. नेक्स्ट ये है कि वो जो फ्यूल है वो चीप होना चाहिए. अब सपोज़ हम अपने व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उसमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है हमें, तो वो जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वो रेडीली अवेलेबल है और वो चीप प्राइस में हमें मिल जाता है. अब सपोज़ कि 10,000 का पेट्रोल हमें रोज़ डालना पड़े अपने व्हीकल्स में, तो डैट इज़ नॉट एन आइडियल फ्यूल. ओके. नाउ नेक्स्ट कम्स दैट बर्न्स इजीली ऑन एयर एट मॉडरेट टेम्परेचर. मॉडरेट रेट पे जो जो फ्यूल है वो बर्न होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी बर्न हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे बर्न होना चाहिए, होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should burn on a moderate rate, and it should not leave any undesirable substances, क्योंकि फिर environment में pollution होगा, that is not desirable. Okay. And it should produce energy on complete combustion. पूरा complete combustion होने पे वो energy produce करना चाहिए. Okay. अब जो fuels हैं वो 3 टाइप के होते हैं: सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है.
Okay, any one of this fuel can be found in any of these state, solid, liquid and gas. जैसे कि सॉलिड फ्यूल है तो जो जैसे कोल है वो सॉलिड फ्यूल में आता है, और जैसे पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें हैं तो वो लिक्विड फ्यूल में आती है। ओके, और जैसे गैस है तो सीएनजी जो है वो गैशियस फ्यूल में आती है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर 6 है कंबशन ऑफ फ्लेम वो कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, एंड प्लीज़ कीप लर्निंग। थैंक यू।